Hey everyone, so I hope everyone is doing fine. So today we will be discussing energy changes, chemistry 5070. So, so the things we have to go through is our understanding of endothermic reactions, our understanding of exothermic reactions, what is enthalpy change, energy level diagrams, and bond breaking and formation. It's like a very easy chapter, but we just need to pay attention, and I'll try my best to make it as clear for you as possible. So let's start off. So first we'll discuss the term exothermic कि exothermic होता क्या है. So exothermic वो reactions होते हैं जिसके अंदर heat is given out from the system to the surrounding. क्या? Chemical reactions in which heat is given out from the system to surrounding. Now I know you all must be wondering that what is the system and what is the surroundings. So chemical reactions in which heat is given out from the system to the surroundings. So when we say the term system, we always refer to our reactants. So system के अंदर हम जब भी बात करते हैं, we are mentioning reactants and reactants only. And when we talk about surroundings, everything comes in the surroundings. Everything else, which is you can say it's our beaker, our thermometer, our room, our product, everything else apart from reactant is our surrounding. So exothermic reactions in which exothermic are chemical reactions in which heat is given out from the system to the surroundings. So इसके अंदर if we say कि equation किस तरह बनती है कि हम reactants हैं, reactants react करेंगे, product मिलेगी और heat energy. Product plus heat, heat हम लोग लिखते नहीं है, but product plus heat तो heat release हो जाती है. ये हमारे पास end पे आती है, reactants, product plus heat, ठीक है? And the temperature time graph for exothermic will be something like this. This is our temperature, this is our time, and हम temperature time graph we are discussing about the room, the surroundings. ठीक है, तो surrounding की temperature time graph किस तरह होगा? It will be like this, and then it will become constant. Okay, so the temperature will increase until reaction is completed. तो होगा क्या, as we can see, क्योंकि देखो ये सराउंडिंग की हम ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ हम डिस्कस करें सराउंडिंग्स की, ठीक है? तो जब हम लोग ने सिस्टम से हीट को रिलीज किया टू सराउंडिंग, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर इंक्रीज होगा और वो इंक्रीज होता रहेगा जब तक हमारी रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती, और जैसे रिएक्शन कंप्लीट होगी तो वो वापस नीचे आके कांस्टेंट हो जाएगा टू इट्स ओरिजिनल टेम्परेचर. ठीक है, यहाँ तक आई होप समझ आ गया. एक दफ़ा गिव अ क्विक रिकैप. Exothermic reactions in which heat is given out from the system to surroundings. System क्या है, reactants, surroundings क्या है, everything else. ठीक है, तो इसमें हम बेसिकली हमारा किस तरह होगा, reactants react करेंगे and we will have product and heat energy will be released. ठीक है, then we discussed कि ग्राफ किस तरह बनेगा of surroundings कि temperature will increase until reaction is completed. ठीक है, अच्छा अब इसमें एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट नोट लिखने जा रहा हूँ, सो प्लीज़ इसको याद रखना कि जब भी हम एक्सोथर्मिक की बात करते हैं ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की बात करते हैं, तो हाई एनर्जी पार्टिकल्स कन्वर्ट होती हैं लो एनर्जी पार्टिकल्स के अंदर. ठीक है, हाई एनर्जी पार्टिकल्स इज कन्वर्टेड टू लो एनर्जी पार्टिकल्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, this note is very important that high energy particles is
is converted into low energy particles. And now uh, keep this note in your mind, and now we'll discuss some examples. Now we will discuss some examples of exothermic reactions. Exothermic reactions. So number one, condensation. Our change of state, condensation, is our number one example of exothermic. So condensation में क्या होता है? We all know that when gas condenses to water, when gas condenses to water, heat is given out. Heat is given out. Condensation of stream to water. So heat is given out. Condensation of steam to water. एक एग्जांपल है इसकी कि कंडेंसेशन ऑफ स्टीम टू वाटर फॉर एग्जांपल, तो उसकी हमारे पास इक्वेशन किस तरह होगी? H2O in gas will give us H2O in liquid plus heat. ठीक है, सो ये नंबर वन हमारी एग्जांपल है. ठीक है, नंबर टू, any other change of states. Do you recall any other change of states which also practices the idea that high energy particle is converted into low energy particle? Freezing. Freezing is our number second example of exothermic. How? That when liquid is heated, when liquid is freezed into solid, high energy particles are converted into low energy particles. And ये आप लोगों ने पढ़ा भी है in our first chapter which we study kinetic particle theory and change of states. I have made a video on it as well. So we discussed that कि जब हम लोग फ्रीजिंग के प्रोसेस में क्या होता है, एनर्जी हमारी कम होनी शुरू हो जाती है. एनर्जी हमारी कम होनी शुरू हो जाती है, पार्टिकल्स अपनी फिक्स्ड पोजीशन पर सेटल होने शुरू हो जाते हैं. ये क्यों होते हैं? बिकॉज इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. हीट इज रिलीज्ड. एनर्जी, हीट एनर्जी है ना बेसिकली, सो एनर्जी इज रिलीज्ड. जब एनर्जी रिलीज होती है तो हाई एनर्जी पार्टिकल से लो एनर्जी पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट होती है. तो फ्रीजिंग हमारी वन ऑफ आवर एग्जांपल्स है. किस तरह? बिकॉज एक्सोथर्मिक रिएक्शन प्लेस हो रहा है, सिस्टम से सराउंडिंग में हीट गिवन आउट है. इट्स नॉट टेकन इन, इट्स गिविंग आउट. यू अंडरस्टैंड? सो ये हमारी सेकंड रिएक्शन एग्जांपल है. ठीक है, एंड नंबर थ्री, all combustion reactions are exothermic. This is important. All combustion reactions are exothermic. ठीक है, किस तरह? हमें पता है कि combustion reaction में क्या होता है? It's a fuel. Combustion reaction is burning of fuel. ठीक है, it is the burning of fuel in the presence of oxygen. तो ये याद रख लें बात कि for a combustion reaction to take place, for a combustion reaction to take place, we must need the presence of oxygen. ऑक्सीजन के बगैर combustion reaction कभी take place नहीं करेगी. ये एक यूनिवर्सल रूल है. ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए. ऑलराइट, सो हमने अभी तक तीन एग्जांपल डिस्कस की. हमने दो चेंज ऑफ स्टेट्स डिस्कस किए जिधर हाई एनर्जी पार्टिकल्स से लो एनर्जी पार्टिकल्स की तरफ जा रहे हैं, हीट रिलीज हो रही है सिस्टम से सराउंडिंग के अंदर. ये तीन होगी. चौथी है दैट all neutralization reactions are exothermic. And I hope you have done acid basis salts. If you have not done that, you won't understand that when acid and alkali reacts, it gives out heat. ठीक है, it gives out heat. तो हम लोग जनरली जब बात करते हैं ना, तो हम लोग कभी भी हीट को एक रिएक्शन या इक्वेशन में प्लेस नहीं करते, लेकिन असली में हो कुछ इस तरह रहा होता है. वी से एसिड प्लस बेस रिएक्ट हुई,
it will give us salt, water and heat. Heat भी release होती है, but we never write it down. But we should know that कि all neutralization reactions are exothermic, क्योंकि examiner हमसे अक्सर पूछ लेता है. And last example of exothermic reaction is the process of respiration. The process of respiration in human body. तो अगर आप bio वाले हैं, so you know that, and if you're not bio students, you know, so you should know that it is glucose breakdown in our body. Glucose breakdown. ठीक है, तो इसकी हमें इक्वेशन याद होनी चाहिए, लाजमी याद होनी चाहिए. सो इट इज C6H12O6. ये बेसिकली ग्लूकोज होता है. इफ यू गाइस डोंट नो, दिस इज ग्लूकोज. बेसिकली ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है. C6H12O6 प्लस 6O2. ये बैलेंस्ड है. अगर बैलेंस याद हो तो ज़्यादा अच्छा है, वरना काम चल जाएगा उसने भी. तो 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी. ठीक है, तो ये हमारे पास हमारी रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बॉडी, एनर्जी या हीट, आप एनीथिंग लिख सकते हैं. ठीक है, तो ये हमारे पास 5 रिएक्शंस हैं एक्सोथर्मिक की. एक्सोथर्मिक का बेसिकली आइडिया क्या है कि जिसके अंदर सिस्टम से हीट इज गिवन आउट फ्रॉम द सराउंडिंग. सिस्टम क्या है, रिएक्टेंट, सराउंडिंग्स क्या है, एवरीथिंग एल्स. टेम्परेचर टाइम ग्राफ डिस्कस किए, कुछ एग्जांपल्स डिस्कस किए. ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू एंडोथर्मिक रिएक्शंस. Endothermic reactions. अब endothermic reactions are opposite of exothermic reactions. क्या मतलब? endothermic reactions के अंदर वो ऐसे chemical reactions हैं, chemical reactions in which heat is absorbed, in which heat is absorbed into the system from the surroundings. Is absorbed into the system from the surroundings. ठीक है, एक्सो में क्या था, heat is given out. Chemical reaction in which heat is given out from the system to the surroundings. Endothermic क्या है, chemical reaction in which heat is absorbed into the system from the surroundings. Opposite. ठीक है, into the from the surroundings. ठीक है, तो क्या मतलब ये कि फॉर एग्जांपल कि ये हमारे पास सिस्टम है और हमें पता है सिस्टम हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट्स. ये हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं. ठीक है, और हीट, ये हमारे पास हीट है. ठीक है, सो हीट इज टेकन इन फ्रॉम द सराउंडिंग्स. ठीक है, तो अगर आपको डेफिनेशन में कंफ्यूजन हो रही है, सो दिस फिगर ड्रॉ कर सकते हैं जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, अब इसकी इक्वेशन किस तरह बनती है, इसकी इक्वेशन इस तरह बनती है कि रिएक्टेंट्स प्लस हीट या प्लस एनर्जी विल गिव अस प्रोडक्ट्स. ठीक है, तो मैंने आपको क्या कहा था, सारा कुछ ऑपोजिट चल रहा है. तो अब इसका टेम्परेचर टाइम ग्राफ किस तरह बनेगा, सराउंडिंग का. हमने सराउंडिंग से हीट ली है, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या होगा, गिरेगा कि नहीं गिरेगा. सो ये हमारे पास टेम्परेचर टाइम ग्राफ है, टेम्परेचर टाइम ग्राफ. अब ये टेम्परेचर टाइम ग्राफ किस तरह होगा, समथिंग लाइक दिस. होगा क्या, टेम्परेचर विल डिक्रीज until the reaction is completed. एक्सोथर्मिक में ऑपोजिट था, क्योंकि सिस्टम को हीट दे रहे थे हम लोग, तो टेम्परेचर सिस्टम से हीट दे रहे थे सराउंडिंग के अंदर, तो टेम्परेचर जो था सराउंडिंग का वो इंक्रीज हो रहा था. इस केस में ऑपोजिट है, तो जो हमारी सराउंडिंग है उससे हीट ले जा रही है, दे नहीं रहे, ले रहे हैं. तो होगा क्या कि टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग डिक्रीज करती रहेगी. कब तक करती रहेगी, जब तक रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती. तो अंटिल द रिएक्शन इज कंप्लीटेड. ठीक है, सो एक्सो एंडो की जो बात है ना, उसके अंदर वी शुड नो कि एक्सो एंडो में होता क्या है, उसका टाइम टेम्परेचर टाइम ग्राफ किस तरह बनता है, उसकी इक्वेशन किस तरह बनती है और उसके एग्जांपल्स क्या हैं. ठीक है, सो अब हमारे पास एग्जांपल्स हमने करनी है. सम एग्जांपल्स ऑफ एंडोथर्मिक. अच्छा,
अब एज ए मेंशन्ड कि हर चीज ऑपोजिट चल रही है। एक्सोथर्मिक में क्या होता था, हाई एनर्जी पार्टिकल से लो एनर्जी पार्टिकल्स की तरफ जाते थे। एंडोथर्मिक में ऑपोजिट होता है, लो एनर्जी पार्टिकल से हाई एनर्जी पार्टिकल्स में कन्वर्ट होती है। ये नोट लिख लें, लो एनर्जी पार्टिकल्स आर कन्वर्टेड इनटू हाई एनर्जी पार्टिकल्स। क्यों? If someone asks why, because heat is absorbed, it's not taken in, it's taken in, it's not giving out, heat is absorbed, ठीक है? So ये note है, you should remember this. Okay, so अब examples of endo पे चलते हैं। Number 1, boiling। boiling में क्या हो रहा होता है, अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखी हुई है चेंज ऑफ स्टेट्स की, तो ये आप लोगों के लिए बड़े आसान होगा। वाटर बॉईल हो रहा है स्टीम के अंदर, लो एनर्जी पार्टिकल से हाई एनर्जी पार्टिकल में जा रहे हैं, हीट दी जा रही है, ठीक है? हीट देखें, अब बॉइलिंग के अंदर क्या होता है, एंड वो एब्जॉर्ब करेगा ना पानी, आप उसको हीट देंगे, इट विल बॉयल अप एंड इट विल चेंज स्टेट, सो हीट इज एब्जॉर्ब्ड। ओके, नंबर 2, मेल्टिंग। मेल्टिंग में क्या होता है, लो एनर्जी पार्टिकल कन्वर्ट होते हैं हाई एनर्जी पार्टिकल्स के अंदर, सॉलिड कन्वर्ट होता है लिक्विड के अंदर, ठीक है? तो मेल्टिंग। देन मैं इसकी डिटेल्स ही लिख रहा बिकॉज इफ यू हैव डन द चेंज ऑफ स्टेट, सो यू शुड नो द प्रोसेस, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। नंबर 3, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन एक दूसरे का इन्वर्स है। क्या मतलब कि अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 6CO2 प्लस 6H2O, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, हमें क्या देगी, C6H12O6 प्लस 6O2। तो अगर आप याद करें, ये ऑपोजिट है। अगर आप याद करें, इफ यू गो बैक एंड लुक एट द रेस्पिरेशन, इफ यू लुक बैक एंड रेस्पिरेशन देखें, तो इसका कंप्लीट ऑपोजिट है कि नहीं? C6H12O6 ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन विल गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। In the case of photosynthesis, carbon dioxide and water react to give us glucose plus oxygen. तो अक्सर एग्जामिनर में पूछ लेते हैं कि what are the two main components needed for the process of photosynthesis to take place? तो हम हमेशा लिखते हैं sunlight and chlorophyll. अगेन जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स होंगे या जिनको बेसिक्स आती हैं, तो उन्हें पता होगा कि क्लोरोफिल का क्या काम होता है, ठीक है? इट बेसिकली गिव्स कलर टू द प्लांट्स, ठीक है? जो ग्रीन कलर्स होते हैं ना, वो इसकी वजह से होते हैं। एनीवेज, let's not get into that, हम लोग ने अभी we'll stick to chemistry. Alright, so 3 examples हो गए। Our fourth one is decomposition, breaking down, ठीक है? This is our fourth example of energy changes. So CaCO3 plus heat, देखें प्लस हीट इधर आ रहा है बिफोर प्रोडक्ट, तो क्या मतलब है, एंडोथर्मिक है। हमें क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ब्रेक डाउन होगा और कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा, CaO बन जाएगा, ठीक है? तो ये हमारे पास डिकम्पोजिशन आ गई। दीज आर द 4 एग्जांपल्स वी नीड टू नो फॉर आवर एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इधर हमारे पास एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक खत्म हुआ। नाउ वी हैव टू डिस्कस एंथैल्पी चेंज। We have to discuss enthalpy change. अच्छा, enthalpy change क्या होता है? Enthalpy change होता है कि the amount of heat energy given out or taken in during a chemical reaction is known as enthalpy change, ठीक है? या इसको to summarize या easy करने के लिए हम कहते हैं the overall energy change in a chemical reaction. The overall energy change in a chemical reaction के मतलब कितनी energy taken in है, कितनी energy given out है, कितनी energy exothermic है, कितनी energy endothermic है एक chemical reaction के अंदर. So the overall energy change in a chemical
रिएक्शन, क्योंकि देखो ये साइमल्टेनियसली दोनों काम हो रहे होते हैं, ठीक है, साइमल्टेनियसली दोनों काम हो रहे होते हैं, बट हम लोग एक, अभी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि हाउ वी टेल, और ये एग्जाम में बहुत दफा एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन हाउ दिस पार्टिकुलर थिंग इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, सो विल गेट इनटू दैट, डोंट वरी। सो एंथैल्पी क्या है? द ओवरऑल एनर्जी चेंज इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब इसके सिंबल जो होता है ना, जो हम लोग सिंबल जिसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम लोग कहते हैं डेल्टा एच, डेल्टा एच, दिस इज आवर सिंबल फॉर एंथैल्पी चेंज। इसका यूनिट जो हम लोग लिखते हैं वो है किलो जाउल्स, किलो जाउल्स, हम लोग खाली जाउल्स नहीं यूज करते, किलो जाउल्स यूज करते हैं फॉर द एंथैल्पी चेंज। और ये याद रखना, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो अब मैं ब्लैक से लिखने जा रहा हूँ कि इफ डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है, इफ डेल्टा एच वैल्यू इज पॉजिटिव, रिएक्शन विल बी endothermic, and if delta H value is negative, reaction will be exothermic, will be exothermic, ठीक है। I know it sounds confusing and you will be thinking यार हमें किसने पता चला कि पॉजिटिव नेगेटिव से रिएक्शन एंडो है या एक्सो है। So there is a formula to find delta H, there is a formula to find delta H। अभी आप सिर्फ इसको याद कर लें, we will discuss it further अभी later on कि हम किस चीज़ों की बातें कर रहे हैं। तो ये जो फार्मूला के अंदर जितनी बातें हो रही हैं you will get to know in a minute, बस ये लिख लें अपने पास, अभी पॉन्डर ओवर ना करें, मैं आपको समझाता हूँ। So overall एनर्जी चेंज जो हमें कहते हैं डेल्टा एच इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब्ड फॉर बॉन्ड ब्रेकिंग माइनस टोटल एनर्जी रिलीज्ड फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। I know अभी बहुत confusing लग रहा होगा, but it's very simple. We'll get to that in a minute. So इससे हमें पता चलता है कि रिएक्शन एक्सो या एंडो है। फॉर एग्जाम्पल हमें कहते हैं कि यार डेल्टा एच ढूंढना है हमने, ठीक है, हमें टोटल एनर्जी एब्सॉर्ब्ड बॉन्ड ब्रेकिंग -20 है किलो जाउल्स, और -100 है हमारे पास किलो जाउल्स है एनर्जी रिलीज फॉर बॉन्ड ब्रेकिंग। तो हमारे पास डेल्टा एच क्या आ जाएगा? -80। तो अब माइनस हमने क्या कहा था, नेगेटिव डेल्टा एच किसके इक्वल होता है? एक्सोथर्मिक के, ठीक है। सिमिलरली अगर हमारे पास आता क्या है, डेल्टा एच ढूंढो, टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब्ड फॉर बॉन्ड ब्रेकिंग इज 200 किलो जाउल्स माइनस टोटल एनर्जी रिलीज्ड फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन इज 50 किलो जाउल्स। हमने कहा ठीक है, माइनस के हमारे पास आंसर आ जाएगा डेल्टा एच इज इक्वल टू 150 किलो joules। पॉजिटिव है, हम कहेंगे एंडोथर्मिक है। So this is how we determine, this is our one way to determine that if our reaction, chemical reaction is endothermic or exothermic, ठीक है। अब एनर्जी चेंज को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग दो चीजें यूज करते हैं। अब हमें पता है क्या कि एक्सोथर्मिक है, heat is given out from the system to the surroundings, endothermic है, heat is taken in or absorbed into the system from the surrounding, ठीक है। अब इसको एक्सप्लेन किस तरह करते हैं? The explanation of energy change, हमें पता है एनर्जी चेंजेस किस तरह की होती हैं, दो टाइप्स हमने पढ़ ली है, उसकी एग्जांपल्स भी पढ़ ली हैं, बट इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं नंबर 1 in terms of bond breaking and bond formation। जो अभी आप हम कर रहे थे ना डिस्कस, डेल्टा एच की क्या कहते हैं वैल्यू, किस तरह फाइंड करते हैं, और ये बॉन्ड ब्रेकिंग बॉन्ड फॉर्मेशन क्या हो रहा है, तो हम इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। एंड नंबर 2 इज आवर एनर्जी लेवल एंड प्रोफाइल डायग्राम्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एनर्जी प्रोफाइल और एनर्जी लेवल डायग्राम्स को डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन की तरफ चलते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल
Let's discuss energy level diagram. Alright, so first of all हमारे पास जो सबसे पहली एनर्जी लेवल डायग्राम आती है, दिस इज फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और होता क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ होता क्या है कि हमारे पास जो वाई एक्सिस होती है ना, हमारी वाई एक्सिस के ऊपर हमारे पास होता है एनर्जी। ठीक है, वाई एक्सिस के ऊपर हमारे पास होता है एनर्जी एंड एक्स एक्सिस के ऊपर हमारे पास होता है द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ये याद रखें बिकॉज हमें अक्सर एग्जामिनर पूछ लेता है लेबल करने का, और इस टॉपिक में से 3 या 4 ही सवाल होते हैं जो ऑफन रिपीट होते हैं। वील गेट टू दैट कि कौन कौन से सवाल होते हैं। ठीक है, तो वाई एक्सिस पे एनर्जी होती है, एक्स एक्सिस पे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन होता है। ओके, सो इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, रिएक्टेंट्स हमारे पास हमेशा ऊपर होते हैं, प्रोडक्ट्स हमारे पास नीचे होते हैं। रिएक्टेंट्स देखो ऊपर हैं, प्रोडक्ट्स नीचे हैं, और एक एरो जा रहा है डाउनवर्ड्स। ये जो एरो है ना, एरो हेड, ये डिटरमिन करता है कि डेल्टा एच की वैल्यू क्या है। अगर तो एरो अपवर्ड्स है तो डेल्टा एच पॉजिटिव है, और अगर तो एरो डाउनवर्ड्स है तो डेल्टा एच नेगेटिव है। ठीक है, अब इस इन दिस केस वी कैन टेल दैट एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और डेल्टा एच नेगेटिव। हमने ये बात पढ़ी हुई है कि व्हेन delta H value is negative, the reaction taking place is exothermic. तो हमें ये पता चल गया नेगेटिव डेल्टा एच एरो डाउनवर्ड्स है। ओके, अब रिएक्टेंट्स ऊपर क्या हैं, प्रोडक्ट्स नीचे हैं, ये क्यों? अब इसकी एक्सप्लेनेशन अगर एग्जाम में पूछ लें, सो वी शुड नो एनर्जी is given out to the surrounding energy is given out to the surrounding during an exothermic reaction, during an exothermic reaction, hence the energy level diagram hence the energy level of the products is less than reactants. I hope this thing is clear कि एनर्जी लेवल डायग्राम हमने पढ़ ली, और ये रिएक्टेंट्स ऊपर प्रोडक्ट्स नीचे का क्या सीन है, ये इसलिए दैट एनर्जी हमारी जो है, हमने पढ़ा एक्सोथर्मिक कि इट इज गिवन आउट टू द सिस्टम, सॉरी, इट इज गिवन आउट टू द सराउंडिंग्स फ्रॉम द सिस्टम। ठीक है, तो होगा क्या, एनर्जी लेवल ऑफ द प्रोडक्ट जो है वो जाहिर सी बात है कम होगा रिएक्टेंट से। ठीक है, ये इसका थॉट है, थॉट बिहाइंड इट कि व्हाई रिएक्टेंट्स आर अबव एंड व्हाई प्रोडक्ट्स आर बिलो, बिकॉज it is an exothermic reaction, energy is given out to the surroundings. ठीक है, so next जो हमारे पास एनर्जी लेवल डायग्राम है, that is of an endothermic reaction. ठीक है, अब एंडोथर्मिक में आपने नोटिस करोगे, मैंने आपको हमेशा कहा जब भी हम बात कर रहे होते हैं एक्सो एंडो के, देयर कंप्लीट ऑपोजिट। अब इस केस में रिएक्टेंट्स नीचे हैं, प्रोडक्ट्स ऊपर हैं, रिएक्टेंट्स नीचे हैं, प्रोडक्ट्स ऊपर हैं, और डेल्टा एच का एरो किस तरफ जा रहा है, पॉजिटिव। अगेन इस पर नहीं मेंशन हुआ हुआ, लेकिन यू शुड नो दैट द एक्स एक्सिस जो है हमारे पास, वो है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ठीक है, और अपवर्ड एरो मैंने आपको बताया था कि डेल्टा एच जो है ना, एरो से रिप्रेजेंट होता है। ऊपर एरो जा रहा है तो हम कहेंगे डेल्टा एच पॉजिटिव है, नीचे जा रहा है तो नेगेटिव है। ओके, अब इसकी एक्सप्लेनेशन क्या, रिएक्टेंट्स नीचे क्यों है, प्रोडक्ट्स ऊपर क्यों है, तो सेम थिंग है बट इसका ऑपोजिट है एज आई मेंशन। तो क्या है कि एनर्जी जो है इट इज टेकन इन फ्रॉम द सराउंडिंग्स, energy is taken in from the surroundings, hence energy level of the products are greater, is greater than reactants। ठीक है, ऊपर जाएं तो ऑपोजिट बात चल रही है। ऊपर क्या है
कि ऊपर रिएक्टेंट्स ऊपर है, प्रोडक्ट्स नीचे, इसलिए है क्योंकि एनर्जी गिवन आउट टू द सराउंडिंग है। और मैंने आपको एनर्जी इज गिवन आउट टू द सराउंडिंग्स फ्रॉम द सिस्टम, hence the energy level of the products is less than reactants। इस केस के अंदर energy is taken in from the surroundings, ठीक है, तो energy level of the product is greater than the reactants, ठीक है। ये हमारे पास आके हमारे पास दो energy level diagrams, and I hope it's clear क्योंकि बहुत आसान है। अच्छा, एक हम इस पर एक एग्जाम्पल क्वेश्चन भी कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एग्जामिनर हमें कहता है कि एक रिएक्शन है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड will give us NaCl प्लस वाटर। तो इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएं, इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएं। अच्छा ठीक है। अच्छा एक चीज मुझे बताएं, ये किसका रिएक्शन चल रहा है? ये रिएक्शन क्या है? ये हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सॉल्युबिलिटी टेबल अगर याद है आपको, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज सॉल्युबल और एंड इट इज अ बेस। तो सॉल्युबल बेस क्या होती है? एल्कलाई प्लस एसिड। एसिड प्लस बेस की रिएक्शन होती है तो हमेशा सॉल्ट वाटर प्लस हीट, व्हिच मींस इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो हमारे पास किस तरह का हमारे पास ग्राफ बनेगा? हमारे पास ग्राफ किस तरह बनेगा? y एक्सिस, x एक्सिस, y पे एनर्जी, x एक्सिस पे प्रोग्रेस, रिएक्टेंट्स ऊपर होंगे, प्रोडक्ट्स नीचे होंगे। यही पढ़ा था हमने। रिएक्टेंट्स ऊपर होंगे, प्रोडक्ट्स नीचे होंगे। क्यों? बिकॉज एनर्जी इज गिवन आउट टू द सराउंडिंग्स, ठीक है। तो हम कहेंगे ठीक है, हम कहेंगे ऊपर जो है हमारे पास रिएक्टेंट्स है। अब इधर सिर्फ रिएक्टेंट्स नहीं देखना, ये नहीं लिख के आ जाओ रिएक्टेंट्स, नहीं, इधर जो रिएक्टेंट्स दिए हुए उसको लिखना है। प्लीज इसका ख्याल रखना कि जो रिएक्टेंट्स दिए हुए क्वेश्चन में उसको लिखना है। तो हम कहेंगे अच्छा इधर NaOH प्लस HCl है। ओके, नाउ व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? हम एक एरो डाउनवर्ड्स रिप्रेजेंट करते हैं कि डेल्टा H को ऐसा ही है। हम कहेंगे डेल्टा H इज इक्वल्स टू नेगेटिव, एंड हमारे पास प्रोडक्ट्स क्या बने? NaCl प्लस H2O, ठीक है। प्लस सीट नहीं लिखते, हम लोग को जरूरत नहीं है, बट वी शुड नो, हमें पता होना चाहिए कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज एन एक्सोथर्मिक। ओके, तो ये हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन एंड वी नो हाउ टू डू इट। ओके, नेक्स्ट थिंग जो हमने पढ़नी है वो है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। Alright, so the next thing we are discussing is activation energy and energy profile diagram. This is another way to explain energy changes. अब activation energy क्या होती है? अच्छा, you should always know that for all reaction bonds in the reactant particles, must be broken before new bonds in the product particles are made. क्या मतलब? कि रिएक्शन जो रिएक्टेंट्स में जो रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट्स हैं उनके बॉन्ड्स जो हैं उसको तोड़ना जरूरी है बिफोर नए प्रोडक्ट्स फॉर्म हो सके, ठीक है। बॉन्ड हमें ब्रेक करने हैं फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। तो इन ऑर्डर टू फॉर्म बॉन्ड्स वी हैव टू ब्रेक form new bonds, we have to break reactant bonds। क्योंकि न्यू बॉन्ड्स हमें पता है प्रोडक्ट साइड में बनेंगे, तो पहले हमें रिएक्टेंट बॉन्ड्स को तोड़ना पड़ेगा इन ऑर्डर टू फॉर्म न्यू बॉन्ड्स ऑन द प्रोडक्ट साइड। इसको जरा सही से लिख देते हैं सो यू गाइस कैन हैव क्लैरिटी। सो इन ऑर्डर टू फॉर्म न्यू बॉन्ड्स on the product side, you have to break reactant bonds first, ठीक है।
ये बात आपको पता होना जरूरी है। अच्छा, अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? अब आपको पता है कि कोलिजन्स होती हैं, ठीक है, कोलिजन्स होती हैं, लेकिन कोलिजन्स ऑलवेज रिजल्ट इन, जो कोलिजन है वो हमेशा केमिकल रिएक्शन में रिजल्ट नहीं देती। क्या मतलब कि फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर इनसफिशिएंट एनर्जी की कोलिजन्स हैं, इफ वी हैव कोलिजन्स ऑफ इनसफिशिएंट एनर्जी, तो हमें प्रोडक्ट नहीं देगी, वो इफेक्टिव नहीं होगी, वो प्रोडक्ट नहीं देंगी। आपको समझ आ रही है बात? व्हाट आई मेंट इज दैट अगर कोलिजन आपकी हो रही है बिटवीन द पार्टिकल्स, बट कोलिजन इज नॉट कोलाइडिंग विद सफिशिएंट एनर्जी रिक्वायर्ड, तो प्रोडक्ट्स नहीं बनते, ठीक है, प्रोडक्ट्स नहीं बनते, केमिकल रिएक्शन अकर ही नहीं होता, ठीक है। सो इफ we have collision of insufficient energy, so if we have collision of insufficient energy, the chemical reaction does not occur, product नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? कि effective collision ही नहीं हुई, insufficient energy है, so क्योंकि वो टकराएंगे और वो बाउंस बैक कर जाएंगे। so if we have collision of insufficient energy, the chemical reaction will not take place, ठीक है। so अब आप कहेंगे यार इस पूरी कहानी में एक्टिवेशन एनर्जी कहाँ आई? अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड इन ऑर्डर फॉर अ केमिकल रिएक्शन टू अकर। मतलब वो सफिशिएंट एनर्जी, हमने कहा ना कि कोलिजन हुई है इनसफिशिएंट एनर्जी की, तो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस नहीं करेगी, तो वो सफिशिएंट एनर्जी क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी है। दैट सफिशिएंट एनर्जी, दैट मिनिमम एनर्जी required for a collision in order to take a chemical reaction to take place, ठीक है। I hope you're getting my point. So anyways, let's write it down that activation energy so activation energy is the minimum energy, it is the minimum energy required for a chemical reaction to take place, सही है। अब आप कहेंगे कि यार हमें पूरी कहानी समझ आ गई है कि हमेशा कोलिजन्स रिजल्ट नहीं करते केमिकल रिएक्शन में, कभी कभार इनसफिशिएंट कोलिजन्स होते हैं, वो टकराते हैं, बाउंस बैक हो जाते हैं, कोई केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस नहीं होता, कोई प्रोडक्ट नहीं बनता। तो प्रोडक्ट बनने के लिए, केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हमें सफिशिएंट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, एंड दैट सफिशिएंट एनर्जी इज आवर एक्टिवेशन एनर्जी, व्हिच इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर अ केमिकल रिएक्शन टू टेक प्लेस। ओके, यू अंडरस्टैंड दैट। अब एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम क्या होता है? एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम होता है, सिमिलर चीज होती है एनर्जी लेवल डायग्राम से, बट उसके अंदर हम एक्टिवेशन एनर्जी का लूप भी शो करते हैं। किस तरह? मैं आपको समझाता हूँ। Alright, so this is our energy profile diagram of an exothermic reaction. Reactants ऊपर है, products नीचे, हमें यहीं से पता चल जाना चाहिए कि exothermic की बात हो रही है। Reactants ऊपर है, products नीचे हैं, reactants ऊपर है, products नीचे हैं। ये क्यों है? Because energy is given out to the surrounding, ठीक है। तो अब होता क्या है कि reactants ऊपर हैं, products नीचे हैं, तो क्या कहते हैं, हम लोग को पता है कि फॉर एग्जाम्पल हम इधर एक बनाते हैं, इसके अंदर सिर्फ एनर्जी, इसमें सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी शो हुई है लूप, बट हम इस तरह बनाते हैं, ये एनर्जी है, ये हमारे पास प्रोग्रेस है, इधर हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, इधर हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, ये हमारे पास एक एरो जा रहा है डाउनवर्ड्स फॉर डेल्टा एच। ये तो हमारे पास है एनर्जी लेवल डायग्राम। अब प्रोफाइल डायग्राम के ऊपर क्या होता है कि एक हम लोग लूप बनाते हैं, ठीक है। और ये जो लूप होता है इसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। अच्छा, एक्टिवेशन एनर्जी को हम लोग का सिंबल होता है, एक्टिवेशन एनर्जी का सिंबल होता है
ई ए, कैपिटल ई एंड स्मॉल ए, हम उसको ई ए के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट एक्टिवेशन एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये आपको अक्सर एमसीक्यूज में ट्रिक करते हैं, यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दिस कि एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ कि लूप जो है ना रिएक्टेंट से शुरू होती है एक्टिवेशन एनर्जी में और प्रोडक्ट्स में जाके खत्म होती है, ठीक है। इस तरह का होता है एक्सोथर्मिक का। अब एंडोथर्मिक का किस तरह होता है, अगेन इट्स द ऑपोजिट। अब एंडोथर्मिक का इस तरह का कुछ होता है, ये दिस इज आवर वाई एक्सिस, दिस इज आवर एक्स एक्सिस, ये एनर्जी है, ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है, रिएक्टेंट्स नीचे हैं हमारे, प्रोडक्ट्स ऊपर हैं हमारे, ये हमारे पास एरो अपवर्ड्स है फॉर डेल्टा एच दैट इट इज पॉजिटिव। अच्छा, अब एक्टिवेशन एनर्जी की लूप ना थोड़ी सी डिफरेंट बनेगी। डिफरेंट किस तरह बनेगी कि इट विल बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अब ऊपर जाके कंपेयर करें तो इट इज ऑपोजिट, ठीक है। यहाँ पे लूप शुरू हो रहा था रिएक्टेंट साइड से और प्रोडक्ट पे जाके एंड हो रहा था। इधर थोड़ा सा ऑपोजिट है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट से शुरू हो रहा है लूप एंड प्रोडक्ट पे जाके एंड हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारे पास है डेल्टा एच पॉजिटिव, दिस इज एंडो, और मैं साथ ही एक्सो बना देता हूँ जस्ट टू एक्सप्लेन, एंड दिस इज आवर एक्सो जो मैं अभी बनाने लगा हूँ, ठीक है। ये रिएक्टेंट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं, ये डेल्टा एच का एरो है, और हमारे पास हमारे यहाँ ये एक्टिवेशन एनर्जी है, सही है। सो इट्स जस्ट अ लिटिल बिट कह लो ऑपोजिट साइड। सो ये हमारे पास एक्सो का आ गया, ये एंडो का आ गया। सो यू शुड नो हाउ टू ड्रॉ दिस, ठीक है। यू शुड नो हाउ टू ड्रॉ दिस एंड यू शुड नो व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, नाउ our last thing, and this is very frequently asked question in exam। तो हमारे एग्जाम में अब हम लोग लिखने लगे हैं मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, सही है। पहला तो हमारे पास आता है, पहला हमारे पास क्वेश्चन आता है कि ड्रॉ एनर्जी लेवल डायग्राम, या एनर्जी लेवल या प्रोफाइल, एनर्जी लेवल या प्रोफाइल डायग्राम को आपको कहेगा ड्रॉ करो, या तो आपको कहेगा लेबल करो, या आपको कहेगा दोनों करो, ठीक है। ये हमारे पास नंबर 1 क्वेश्चन होता है। नंबर 2 क्वेश्चन होता है, नंबर 2 हमारे पास क्वेश्चन होता है कि राइट इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन, that right in terms of bond breaking or bond formation, right in terms of bond breaking and bond formation, sorry, and bond formation, that this reaction is exo or endothermic, is exo या endothermic। अच्छा, अब बॉन्ड ब्रेकिंग बॉन्ड फॉर्मेशन होती क्या आखिर पता ही तुम, सो आई लेट यू नो। देखो, a chemical reaction involves the breaking of chemical bonds in the reactant particles and the formation of new bonds in the product particles, ठीक है। हमने पहले भी आपको मैंने बात बताई थी कि रिएक्शन जो है, देखो हमने क्या कहा था कि रिएक्टेंट पार्टिकल्स के अंदर हमारी बॉन्ड ब्रेकिंग होती है। बॉन्ड ब्रेकिंग जो है हमने बात की थी कि बॉन्ड ब्रेकिंग जो है, बॉन्ड ब्रेकिंग जो है वो होती है रिएक्टेंट पार्टिकल्स में, और बॉन्ड फॉर्मेशन होती है या बॉन्ड मेकिंग या फॉर्मेशन होती है प्रोडक्ट साइड में, प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट पार्टिकल्स में, ठीक है। अच्छा, अब दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं बताने लगा हूं कि बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी is required to break bond,
Energy is required to break bond. Bond breaking is endothermic. This is very important, that bond breaking is endothermic and it is on the reactant side. ठीक है? Energy is required to break bond and bond breaking is endothermic. Okay, next point. Energy is released to form bonds. So bond formation is exothermic. ठीक है, and it is on the product side. Okay. अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया, एग्जाम में जो ऊपर वाला मैंने आपको क्वेश्चन बताया था वो आ गया एग्जाम में, ये जो okay, so one of the most frequent asked question is this. So what will you write? ये अक्सर 2 से 3 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है. तो अब आप लिखोगे क्या? अगर आपको कहे कि एक्सोथर्मिक क्यों है, why this reaction is exo, so आप कहोगे more energy is required for bond, more energy is required for bond formation which is exothermic and is on product side, then more energy is required for bond formation which is exo and is on product side, then energy required for bond breaking which is endothermic and on the reactant side. ये हमारे पास आ गया एक तरीका लिखने का कि more energy is required for bond formation which is exothermic and is on product side, then energy required for bond breaking which is endo and on the reactant side. अच्छा, अगर पूछ ले एग्जामिनर कि why this reaction is endothermic, write in terms of bond breaking and bond formation. Okay, तो अगर हमें कहें कि एंडो के टर्म्स में लिखो, इन टर्म्स ऑफ एंडो कि व्हाई दिस रिएक्शन इज एंडो इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन, तो आप दो तरीके से लिख सकते हैं. पहला आंसर जो मैंने आपको ऊपर बताया. सेकंड में आप लिख सकते हो, यू स्टार्ट ऑफ लाइक दिस दैट बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सो एंड बॉन्ड ब्रेकिंग इज एंडो. पहले आप एक स्टेटमेंट लिखो, ये बॉन्ड ब्रेकिंग इज एंडो. उसके बाद आप लिखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. अभी इसने पूछा एंडो था, हम कहेंगे मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन बॉन्ड ब्रेकिंग on the reactant side as compared to energy required in bond formation on the product side. So this is oftenly asked question and 2 से 3 मार्क का क्वेश्चन होता है and you should know how to attempt it. ठीक है, तो आप ये लिखोगे, दिस इज वन वे कि आप लिखो पहले स्टेटमेंट्स कि बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सो होती है, बॉन्ड ब्रेकिंग एंडो होती है, मोर एनर्जी रिक्वायर्ड है in bond breaking on the reactant side as compared to energy required in bond formation on the product side, hence the reaction is endothermic. ठीक है, एग्जामिनर आपको कभी नहीं पूछता कि आप बताएं, आप प्रूफ करें कि ये एंडो है कि नहीं. अगर पूछ भी ले तो हमें पता है डेल्टा एच की वैल्यू क्या है एंड इफ हमें दोनों की वैल्यूज दी हुई है तो हम प्रूफ कर देंगे. अगर हमारी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो इट इज एंडो, नेगेटिव आ रही है तो एक्सो. तो एक तरीका तो ये है एंड दूसरा तरीका ये है कि मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन व्हिच इज एक्सो एंड इज ऑन प्रोडक्ट साइड, देन एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर बॉन्ड ब्रेकिंग व्हिच इज एंडो एंड ऑन द रिएक्टेंट साइड हेंस एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ये इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन है. अगर पूछा रिएक्शन एक्सो क्यों है तो हम ये लिखेंगे कि मोर एनर्जी रिक्वायर्ड है बॉन्ड फॉर्मेशन में
और अगर हमसे पूछे कि रिएक्शन एंडो क्यों है तो हम कहेंगे मोर बॉन्ड फॉर्मेशन की हम कहेंगे कि मोर एनर्जी रिक्वायर्ड इन बॉन्ड ब्रेकिंग एज कंपेयर टू energy required in bond formation. So I hope it's understandable. I hope you're clear. If you have any questions, any doubts, please drop a comment and subscribe for more videos like this. Inshallah, see you guys soon. Allah Hafiz.